Hello everyone. Today we are going to do chapter number 2 from your book Hornbill for class 11th. Okay, and the chapter name is We Are Not Afraid to Die If We Can All Be Together. हम मरने से नहीं डरते यदि हम सब इकट्ठे हैं. Basically it is the story of courage and it is written by Jordan Cook and the Alan East. Okay, and it's give a beautiful mall of the courage, and here you can see the map of the world. And from here Plymouth they start their journey. First of all, before going to read the detailed chapter, I would like to give here only the introduction so that you can grasps the chapter very well. Okay, here is the brief introduction of the chapter. In this chapter, the writer narrates his thrilling journey across the sea. इस चैप्टर में जो राइटर है वो नरेट करता है. क्या नरेट करता है बेटा? अपनी जो थ्रिलिंग जर्नी है, रोमांचक जर्नी है. कहाँ पर? अक्रॉस द सी, समुद्र के बिल्कुल पार. ही वांटेड टू गो अराउंड द वर्ल्ड बाय सी इन द सेम वे कैप्टन जेम्स कुक हैड डन अबाउट 200 years early. The main thing to note down here is the James Captain Cook. Yes, the main thing is to note down here is the name of the Captain James Cook. Okay, and जो कैप्टन जेम्स कुक था उसने 200 years पहले क्या है पूरी वर्ल्ड का राउंड लिया था, और सेम उसी मैनर में ये जो नरेटर है वो भी वर्ल्ड का राउंड लेना चाहता है. इन जुलाई 1976 द राइटर सेट सेल फ्रॉम द सी पोर्ट ऑफ द प्लाईमouth इन द इंग्लैंड. यू कैन सी हेयर द place Plymouth in England. He started his journey from there and he want to take the round of the world. These are the name of the places from where he goes. And now his wife Mary, the first character you came to know about is that is his wife Mary. His 7 years old daughter, उसकी जो 7 साल की लड़की है, her name is Sue, and his 6-year-old son John, who were also with him. यानी कि उसके साथ 3 मेन करेक्टर है, his wife, his son, his daughter 7 years old and his 6 years old son John were also with him. For this long journey, the writer had built for himself a huge boat that was 23 meters in length. The main thing to note down here is the length of the boat is that is the 23 मीटर. 23 मीटर लॉन्ग थी ये जो बोट, और उसने खुद उसको बनाया था. ह्यूज बोट मीन्स विशालकाय बोट. ही कॉल्ड इट द वेव वॉकर. वेव वॉकर होता है लहरों के ऊपर चलने वाला. उसने उसको क्या नाम दिया? वेव वॉकर. इंपॉर्टेंट चीज टू नोट डाउन, वेव वॉकर. इट लुक लाइक अ शिप. ये किसकी तरह दिखती थी? बिल्कुल जहाज की तरह दिखती थी. द राइटर होप टू कंप्लीट हिज जर्नी राउंड द वर्ल्ड इन 3 years. यस, उसका टारगेट क्या था इस जर्नी को कंप्लीट करने का? 3 years का था. इट वॉज टू बी अ 2,55,000 किलोमीटर जर्नी एंड डिस्टेंस वॉज 2,55,000. ठीक है, मेन पॉइंट क्या क्या नोट करने हैं आपने? किसकी तरह वो जाना चाहता था? कैप्टन जेम्स कुक की तरह. एंड मेन करेक्टर मैरी एंड 2 children, and then 23 meters long boat he made himself and name it Wave Walker, and target to complete the journey in 3 years, and the distance was 2,55,000 kilometer journey. Okay, and here the first phase of the journey was about 1,05,000 किलोमीटर. यानी कि उसकी जर्नी का जो पहला चरण था वो कितना था? 1,05,000 किलोमीटर. इट वॉज अप टू द साउथ अफ्रीका सी पोर्ट ऑफ द कैप टाउन. यू कैन सी हेयर द कैप टाउन. हेयर इज़ द कैप टाउन. ओके, फर्स्ट फेज में यहाँ से स्टार्ट होना था उनका. एंड इट पास्ट ऑफ वेरी प्लेजेंटली. पास्ट ऑफ मीन्स गुजर गया, ये बहुत ही अच्छे तरीके से. हेयर द राइटर टुक विद हिम 2 sailors नेम्ड लैरी एंड द हब. ये इंपॉर्टेंट है नोट करना. 2 sailors लिए उसने जिनका नेम क्या था? लैरी and the hub. Because of the southern Indian Ocean is known to be the world most stormy ocean. क्योंकि जो सदर्न इंडियन ओशन है वो सबसे ज़्यादा वर्ल्ड का स्टॉर्मी तूफानी ओशन माना जाता है. द सेकेंड फेज ऑफ द जर्नी वाज 1,50,000 किलोमीटर.
हेयर इज द सेकेंड फेज और इसका डिस्टेंस भी दिया हुआ है. इट वॉज टू बी कम्प्लीटेड ऑन रीचिंग द ऑस्ट्रेलिया. कहाँ पहुँचने पर कंप्लीट हो जाता है ये? ऑस्ट्रेलिया पे. यू कैन सी हेयर ही स्टार्टेड हिज जर्नी फ्रॉम देयर प्लाईमाउथ एंड देन दे रीच द केप टाउन एंड देन going through the Amsterdam Island, they go Australia. Okay, and this is the Indian Ocean, the most stormy ocean here. Ocean is to known this is done. It was to be completed on reaching Australia on 25th December. The writer's wave walker was in the southern Indian Ocean. 25 दिसंबर को राइटर का जो वेव वॉकर था वो कहाँ था? सदर्न इंडियन ओशन में. 3500 किलोमीटर टू द ईस्ट ऑफ द केप टाउन. केप टाउन से इतनी दूरी थी उसकी. द फर्स्ट डे ऑफ द न्यू ईयर वाज सेलिब्रेटेड. अब 1976 में उन्होंने स्टार्ट किया था एंड 1977 में वो वहाँ पर पहुँच गई और न्यू ईयर उनका शिप में ही सेलिब्रेट हुआ. बट ऑन द सेकेंड ऑफ द जर्नी द वेदर सडनली बिकेम वेरी टेरिबल. टेरी मीन्स वो बहुत ही तूफानी बन गया वहाँ पर, भयंकर. देयर शिप वॉज कोट इन द स्टोर्मी सी. उनका जो शिप था वो कहाँ पकड़ा गया? स्टोर्मी तूफानी सी में. द स्टॉर्म कंटिन्यूड फॉर द 3 days. फॉर हाउ मैनी डेज इट कंटिन्यू? 3 days. द शिप वॉज बैडली डैमेज. ये पूरी तरह से डैमेज हो चुका था. द सी वाटर फ्लोड इनटू इट. और जो शिप था उसके अंदर क्या आ गया था? सी वाटर. यू कैन इमेजिन द टाइटेनिक पिक्चर हेयर. द शिप कुड गो डाउन इन टू द सी एनी टाइम. जो शिप था वो समुंदर के अंदर किसी भी टाइम में जा सकता था. बट ईच वन द राइटर, हिज वाइफ, 2 children एंड द 2 sailors. अब टोटल यहाँ पर क्या है? 5 करेक्टर्स हो गए क्योंकि यहाँ पर 2 sailors, लैरी, मैंने आपको बताया था अभी, लैरी एंड हब भी इंक्लूड हो चुके हैं यहाँ पर. नाउ हेयर आर द टोटल 5 करेक्टर्स. नाउ सी द मेन पॉइंट ऑफ द चैप्टर हेयर. The ship could go down into the sea anytime, but each one, the writer, his wife, 2 children, little children, because they are the below 10 years, and the 2 sailors showed unusual courage. Unusual क्या होता? असाधारण courage दिखाया. And survived the storm. और सर्वाइव करके दिखाया स्ट्रोम के अंदर ही. लिटिल जॉन जो उसका सन था वो कहता है, डैडी वी आर नॉट अफ्रेड टू डाई. हम मरने से नहीं डरते. इफ़ वी कैन डाई टुगेदर. यदि हम इकट्ठे मरते हैं तो. द चीफ ऑब्जेक्ट ऑफ दिस चैप्टर इज़ टू गिव अकाउंट ऑफ दिस वेरी करेज. इसी करेज का पूरी डिटेल में बताना इस चैप्टर का मेन ऑब्जेक्ट है. ऑन द इवनिंग ऑफ द 6th January दे स्पॉटेड अ टीनी. स्पॉटेड होता है उन्होंने पाया एक टीनी छोटा सा आइलैंड इन द सी. इट वाज एम्स्टर्डम. इट वाज ओनली 65 किलोमीटर्स वाइड. कितना है ये? 65 किलोमीटर चौड़ा था. एंड ओनली 28 पीपल लिव्ड ऑन इट. और इस टीनी से आइलैंड पर कितने लोग रहते थे? ओनली 28. दे वेलकम द राइटर एंड दिस हिज ग्रुप ऑन द रीचिंग देयर. जब उनका ग्रुप वहाँ पहुँचा 5 बंदों का, तो वहाँ पर इस जो आयरलैंड के आदमी थे उन्होंने क्या करा? उनका वेलकम किया. दैट्स वॉज ऑल अबाउट द इंट्रोडक्शन ऑफ दिस चैप्टर. एंड दिस चैप्टर इज़ इन वेरी डिटेल एंड इट विल टेक 3 to 4 days to complete this chapter. But before reading this chapter you have to read the complete introduction very well so that you can grasp this lesson. And hope to stay healthy and wealthy. Take care of yourself, beta.